30 पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं, तो मेरे ख्याल से हम स्टार्ट करेंगे अब। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, इट विल बी अबाउट डेंस, नोवेयर डेंस एंड बेयर स्पेसेस। ठीक है, मैंने इनकी डेफिनेशंस में आपको बताऊंगा, व्हाट आर डेंस सेट्स, व्हाट आर नोवेयर डेंस सेट्स, एंड देन विल सी व्हाट आर दीज बेयर स्पेसेस। डेंस का तो आपने देखा होगा, बट विल रिकैप्सुलेट दैट। पहले आप इसे नोट करिए, डेंस सेट्स that XD be a metric space। आवाज साफ साफ आ रही है आपको? अगर कहीं प्रॉब्लम होगी ऑडियो में तो मुझे बताइएगा। Let this be a Baire space and A be a subset of X, then this A is said to be dense in the space XD if and only if इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, A closure has to be X। ठीक है ना? Whenever the closure of a set is the underlying set of the metric space, the set is said to be dense in the metric space. ठीक? For example, अगर आप इस metric space में हैं in R with the usual metric, अगर आप Q closure देखेंगे, what's Q closure? क्लोजर कैसे लिया जाता है? इसके लिए हमारे पास बहुत सारी फॉर्मुलेशंस अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हैं। You can compute closure by taking union with the boundary points, by taking union with the limit points, ठीक? Or you can collect the limits of the all possible convergent sequences in the set, ऐसे भी आपको closure मिल सकता है। यहाँ हम boundary point वाले तरीके से जाएंगे। We know that wherever A is a set, then A closure can also be obtained in this way. It's A union the boundary of A, right? अब मुझे आप बताइए, what are the boundary points of Q? It's R। कैसे है ये R? वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप कोई zeta लेते हैं in R, मतलब zeta is any real number, right? इसके बाद अगर आप इसे देखेंगे, zeta minus epsilon, ये थोड़ा सा ना ये एक जैसा दिख रहा है, ये zeta और epsilon, तो कुछ और हम epsilon की जगह R लेंगे। zeta minus R and zeta plus R, open interval zeta minus R, zeta plus R, ठीक? where R is positive, ठीक है? Now this is an open interval and R is positive, so that means it's a non-degenerate open interval, so that means it will contain infinitely many rationals as well as infinitely many irrationals, in fact uncountably many irrationals. So therefore इसका जो intersection with Q होगा वो non-empty होगा, और इसका जो intersection होगा zeta minus R, zeta plus R, इसका जो intersection होगा with Q complement, मतलब with the irrationals, ये भी non-empty होगा. So that means, what is this? It's an arbitrarily chosen open sphere whose center is zeta, क्योंकि यहाँ इस space में जो open spheres होते हैं उनकी form ये होती है. So it's an arbitrary, because R is arbitrary. So it's an arbitrary chosen open sphere with center zeta, और हम देख रहे हैं कि that it intersects zeta
as well, it intersects Q as well as Q complement. That means what? Boundary point. It's a boundary point. But what is zeta? It's an arbitrarily chosen real number. So that means every real number is a boundary point of Q. So what will be Q closure? When I say every real number is a boundary point of Q, so that means boundary of Q is basically R. So what will be Q closure? Q closure will be, by definition, it's Q union boundary of Q. Boundary of Q is R, so this is Q union R, and Q union R is R. And R is the underlying set of this metric space, so therefore Q is dense in R. Hence, Q, the set of rational numbers, is dense in R. ठीक है ना? एक और example. In the same metric space R with usual metric, अगर आप इसे लेते हैं Q complement, अब इसका क्लोजर मुझे बता सकते हैं क्या होगा? You can easily see that boundary of whenever A is a subset of a metric space, then boundary A is same as boundary of its complement. ये चीज मैंने आपके साथ वहाँ क्लास में डिस्कस करी होगी. इसका रीजन ये है कि बिकॉज जो डेफिनेशन है बाउंड्री पॉइंट की, इट्स सिमेट्रिक इन ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट, है ना? ये चीज आपको पता होगी, आपने कॉपी में भी, अपनी नोटबुक्स में भी आपने ये रिकॉर्ड किया होगा. मैंने आपको इसका प्रूफ भी दिखाया होगा. बाउंड्री ऑफ ए इज सेम एज boundary of its complement. So what will be boundary of Q complement? क्योंकि Q complement closure के लिए आपको इसकी boundary पता होनी चाहिए. So by definition, Q actually it's not definition. हमने वैसे closure को ऐसे ही define किया था. हमने वो conventional जो approach है इसका, closure is usually अगर आप text books को देखेंगे वहाँ closure of a set is defined as A union D of A, where D of A is the derived set, that means the set of limit points of A. But हमने इसको कैसे define किया था? हमने closure A को लिया था as A union boundary A. Basically this and this same होता है, इसमें कोई फर्क नहीं है. आप ये लीजिए एक ही बात है. और मैंने ये चीजें फिर आपको सारी दिखाई थी कि they are all equal. Now closure of Q complement will be Q complement union boundary of Q complement. A boundary of Q complement is same as boundary of Q because boundary of A is same as boundary of A complement. So therefore it's equal Q complement union boundary of Q. Boundary of Q हमने ऊपर already obtained ना, उसे हमने already देखा, it's R. So this is again Q complement union R, which is R. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि Q complement is also dense in R. It's Q complement is also dense in R. ये एक ऐसी अगर आप ये ऊपर वाली एग्जांपल और ये नीचे वाली एग्जांपल अगर आप इनको एक साथ देखेंगे साइमल्टेनियसली, तो यहाँ से हमें ये समझ आता है कि इट्स पॉसिबल दैट अ सेट एज वेल एज इट्स कॉम्प्लीमेंट कैन बी डेंस, बोथ कैन बी डेंस. देखिए यहाँ Q भी डेंस है और इसका कॉम्प्लीमेंट भी डेंस है. तो ऐसा नहीं है कि अगर सेट डेंस है तो इसका कॉम्प्लीमेंट डेंस नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है. It's possible that a set as well as its complement can both be dense in this space, जैसा यहाँ आ रहा है. So यहाँ से ये भी एक चीज ना जो निकल के आ रही है वो ये है, अगर आप Q intersected with Q complement देखेंगे, what's this? It's phi. और phi dense नहीं हो सकता because phi closure is phi, right? So that means intersection of two dense sets need not be a dense set. वैसे आप नीचे लिखिए as a remark. Intersection of two dense
sets need not be a dense set. ठीक, so intersection need not be dense. What about union? If we have two dense sets and if we take their union, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? वो हो सकता है। हो सकता है। हो सकता नहीं, वो होगा। हो सकता और होगा में फर्क है। वो होगा। इसका रीजन ये है कि सुपर सेट ऑफ अ डेंस सेट इज ऑलवेज डेंस। इसको मैं पूरी जस्टिफिकेशन आपको दूंगा। लेट एक्स डी बी अ metric space and A1, A2, B2 dense sets in मैं पहले वो सुपर सेट वाली जस्टिफिकेशन आपको दूंगा। ऐसे करें आप and A B dense in XD. ठीक, so this is a metric space and this A is dense in XD. Full stop. If B in X is such that B contains A. समझ रहे आप? ये जो B मैं ले रहा हूँ, मैं इस तरह से ले रहा हूँ that it contains A. That means B is a superset of A, and what's A is dense. Then B contains A means A is contained in B, and therefore we know that closure is monotone closure operation. That means A contained in B, it implies A closure contained in B closure. ये मैंने आपको दिखाया। ठीक, so यहाँ से क्या मिलेगा आपको? Therefore A closure it will be contained in B closure. What's A closure? क्योंकि A आपका dense है, so A closure is X. So that means आप कह रहे हैं कि X is contained in B closure, but B closure is already contained in X. Full stop. Thus यहाँ क्या देख रहे हैं आप? X is contained in B closure is contained in X, so therefore they are equal. Thus B closure is X, and therefore by definition B is also dense. So superset of a dense set is always dense. क्योंकि B यहाँ क्या था? It was just a superset of A. A is dense. तो इसका मतलब है कि superset of a dense set is always dense. अगर चाहे तो आप इसको लिख भी सकते हैं separately. Superset of a dense set is always dense. ठीक, तो यूनियन तो अब आप खुद ही सेटल कर सकते हैं। अगर आप लेते, अगर सपोज यू हैव टू डेंस सेट्स से A1 एंड A2, और मान लीजिए अगर ये दोनों डेंस है, बोथ डेंस, और अगर आप A लेंगे एज A1 यूनियन A2, then clearly क्योंकि A is A1 union A2, so A contains A1, so A becomes a superset of A1. A1 is dense, so that means A is dense. In fact आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं, if you have a dense set and some other set which need not be dense, and if you take their union, it will remain dense. मतलब dense set को अगर आप नए points attach करते हैं ना, it remains dense. नए points attach करने से denseness पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भी इसी logic से आएगा. Superset of a dense set is a dense set.
सो अगर दो का यूनियन, इफ यू हैव टू डेंस सेट्स देयर यूनियन इज डेंस, यही चीज इनफैक्ट इट्स ट्रू फॉर आर्बिट्ररी यूनियंस, आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ डेंस सेट्स इज अ डेंस सेट. ठीक है, सो दीज आर डेंस सेट्स. अब इसके बाद हम पहले देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ नोवेयर डेंस सेट्स. मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर नोवेयर डेंस सेट्स. सो अब हम नोट करिए नोवेयर डेंस सेट्स. इसके लिए सबसे पहले हम एक फ्रेमवर्क क्रिएट करेंगे. लेट एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस and A be a subset of X, then this A is said to be nowhere dense. If and only if. इसके लिए जो requirement है वो ये है. The interior of a closure, it has to be empty. In order to check whether a set A is nowhere dense or not, आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको इसका क्लोजर देख लेना है, फिर उस क्लोजर का इंटीरियर. ठीक, अगर ये एम्प्टी आया then the set is nowhere dense. ठीक है, अब इसकी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा. अगर आप ये मेट्रिक स्पेस लेंगे R विद द यूजुअल मेट्रिक, और इसमें अगर आप A लेंगे एज सेट 1 2 3, ठीक है ना. अब देखिएगा मैं इस A को कैसे लिखूंगा. दिस इज इक्वल, अब लेटर ऑन आप इसको ना, जो मैं एक्चुअली यहाँ करना चाहता हूँ अभी, क्यों, चूंकि हमने होस्ट ऑफ स्पेसेस नहीं देखी, व्हाट आर होस्ट ऑफ स्पेसेस, लेटर ऑन हम इसको मोर ना ज्यादा आसानी के साथ कर सकते हैं, जो मैं करना चाहता हूँ अभी. फिलहाल अब मेरे पास ज्यादा टूल्स अवेलेबल नहीं है, तो मुझे इसको, मेरे पास वही डेफिनेशन को ही यूज करना होगा यहाँ पर. मैं और कोई जो ये सूरत यहाँ अवेलेबल नहीं है. आप इस ए को ऐसे भी लिख सकते हैं. आई कैन राइट दिस एज, ये ध्यान से आप देखेंगे, माइनस इन्फिनिटी open interval minus infinity up to 1 union 1. एक मिनट, अगर हम ऐसे करेंगे, हाँ, यूनियन 1 2 open at 2, then union 2 to 3. ठीक, देखिए मुझे क्या असल में किस सेट को मुझे, मैं किस सेट में इंटरेस्ट हूँ, इस सेट में 1 2 3. अब यहाँ से मैं कौन सा सेट ले रहा हूँ, ये अगर आप इसमें देखेंगे, उसको पहले आप ये करें, यूनियन 3 to infinity. आप इसे देखिए, it's minus infinity to 1, open at 1. R minus A. It's actually A complement.
अब देखिए इसमें 1 2 3 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर्स हैं, क्योंकि देयर इज अ होल एट 1, देयर इज आल्सो अ होल एट 2 एंड देन देयर इज अ होल एट 3. बाकी जो है इट्स अ कंटिन्यूअस स्ट्रेच, सो देयरफॉर it's the whole real line except these 3 points. So this is A complement. मुझे A चाहिए, तो अब A कैसे मैं हासिल कर सकता हूँ इस यहाँ से? I'll take the complement because complement of complement is the set. ठीक है, अब अंदर वाले सेट को अगर आप देखेंगे, ये जो सेट है, what is this? मैं आपसे कह रहा हूँ it's open, बताइए क्यों? Union of open sets is open. Because it's union of open sets और ऊपर से complement है, complement of open is closed, so that means A is closed. ठीक, इनफैक्ट इसी तरीके से आप दिखा सकते हैं that every finite subset of this metric space is closed. समझ रहे हैं मेरी बात? जिस तरह से मैंने ये 1 2 3 सेट के लिए किया ना, आप किसी भी सेट के लिए, किसी भी फाइनाइट सेट के लिए यही चीज कर सकते हैं. तो ये बाय द वे आपने ध्यान में रखिएगा, इस तरह से आप दिखा सकते हैं कि बाय मतलब आप यहाँ दिखा रहे हैं यूजिंग द डेफिनेशन, जो क्लोज्ड की डेफिनेशन है ना, दैट इट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ओपन सेट. आप कोई और ऑब्जर्वेशन या कोई और रिजल्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप डायरेक्टली डेफिनेशन ही इस्तेमाल करें. मैं दिखा रहा हूँ आपको दैट दिस ए इट कैन बी रिटन एज a complement of an open set, so therefore it must be a closed set, so it's a closed set. ठीक, अब अगर मैं आपसे पूछूंगा what is the interior of a closure, हमने A ऑलरेडी देखा है, it's closed, so A closure will be what? Closure of a closed set is आपने पूरा 1 महीना वेस्ट किया आप अपना, जो आपका विंटर का था ना, आप आपको कुछ भी याद नहीं है. मैंने नहीं दिखाया आपको दैट अ सेट A is closed if and only if A is equal its closure. Closure. Yes, So what will be this? This will be interior of A. And what is interior of A? क्या इस A का कोई इंटीरियर पॉइंट है? There are no interior points in this A. So it is what? It's phi. क्योंकि अगर इसका कोई इंटीरियर पॉइंट होगा देन वो पहले इसका मेंबर होना चाहिए. सो दैट मीन्स अगर कोई इंटीरियर पॉइंट है वो इन्हीं में से कोई होना चाहिए 1 2 3. लेकिन इनमें से कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है. क्यों नहीं है? अगर आप 2 पर कोई ओपन स्फीयर लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस 2 minus r 2 plus r, कैन यू से दैट इट इज कंटेन्ड इन A? नहीं. Why? Because this is an uncountable set and A is a finite set, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता. आप कोई भी ओपन स्फीयर नहीं ढूंढ सकते हैं which is centered at 2 and which is contained in A, because open spheres are uncountable in this metric space, whereas A is a finite set, तो ये possible ही नहीं है. So therefore इसका कोई भी interior point नहीं है, so it's phi. So that means interior of A closure is phi, so that means A is nowhere dense. अब इस A में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर बस ये है कि it's a finite set. In fact आप बिल्कुल ऐसे ही दिखा सकते हैं that every finite set in this metric space is nowhere dense. ठीक, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप खुद देखेंगे. Show that every finite set in R with usual metric is nowhere
dense. Every finite set. Finite में empty भी होता है, वो ट्रिवियली नोवेयर डेंस है, तो बिकॉज वो डायरेक्टली आप देख सकते हैं, उसमें कोई जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है. हाँ, जो बाकी नॉन एम्प्टी फाइनाइट है उनके लिए आपको बिल्कुल ऐसे प्रोसीड करना है. आप पहले देखेंगे कि दे आर क्लोज्ड, so therefore their closure will be same as the set. तो फिर आपको बस क्या करना है, you have to take interior of a finite set, or interior of a finite set is always empty as far as this metric space is concerned, or with usual metric. ठीक है. Let me ask you another question. If you take the metric space R with usual metric, और अगर आप A लेंगे as n, the set of natural numbers, what about this A? It will be nowhere dense. This is also nowhere dense. Because जैसे अभी मैंने आपको दिखाया ना, आपको थोड़ा सा उसी आर्ग्यूमेंट को मॉडिफाई करना है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि that A is closed, because इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा. ठीक है ना. बाय द वे, अगर आपको n कॉम्प्लीमेंट लिखना होगा, वो क्या होगा आप मुझे बताइए. n complement, the complement of the set of natural numbers in R is what? पहले तो ये आएगा minus infinity, you are taking natural numbers up to 1, open at 1, then union 1 to 2, open at 2, union open interval 2 to 3, union open interval 3 to 4, union, so on. Right? इसमें क्या मिसिंग है? There are gaps at the natural numbers. 1 पर गैप है, 2 पर एक होल है, 3 पर गैप है, so therefore it's n complement. What is this? This is a union of open sets. Arbitrary union of open sets is open, so n complement is open. N complement is open means n is closed. That means A is closed. So that means A closure will be same as A. So that means interior of A closure will be same as interior of A. What's interior of A? It's 5. Because अगर इसका कोई interior point होगा A का, then A must contain an open sphere. That means an open interval, but open intervals are uncountable. A is countable. So again इसका interior 5 ही होना चाहिए, इसमें कोई और possibility नहीं है. So that means this A is also nowhere dense. So ये थी कहानी किसकी? N की. What about Z? Nowhere dense. And this is also nowhere dense. By the same reason आप देख सकते हैं कि Z is also, this is also nowhere dense. By the way, जब मैंने आपसे कहा ना कि finite sets are nowhere dense, उसका एक particular case ये भी है कि then singletons are nowhere dense, because singletons are also finite sets. Z is also nowhere dense. What about Q? अगर आप interior of Q closure लेते हैं, what is this? So it will be interior of R. Q closure is R. And what's interior R? R, because it's an open set. ठीक? And R is not 5. So that means Q is not nowhere dense. It's dense. और यहाँ से ना एक इसका पर्पस ये है कि मैं आपको ना यहाँ असल में एक चीज आपके जहन में फिट करना चाहता हूँ. Z is nowhere dense, whereas Q, the set of rational numbers, this is dense. This is nowhere dense, whereas Q is dense. हालांकि इनकी कार्डिनलिटी सेम है, कार्डिनलिटी ऑफ Z and कार्डिनलिटी ऑफ Q, it's same, है ना? You can find a bijection from Z to Q.
So that means cardinality has nothing to do with denseness or nowhere denseness. Cardinality इनकी same है, but yet there is a difference. Z is nowhere dense, whereas Q is dense. ठीक है ना? एक और चीज, अगर आप डेफिनेशंस को ही देखेंगे, डेंसनेस की डेफिनेशन और नोवेयर डेंसनेस की डेफिनेशन, आपको अगर आपको थोड़ा एनालाइज करेंगे, दीज आर टू एक्सट्रीम एंड्स, मतलब ये टोटली ना डिफरेंट चीज है। और इनफैक्ट हम इसको एक मतलब हमारे जब आप डेफिनेशंस को ही देखते हैं ना, वहां से एक फीलिंग आती है कि दैट मीन्स ये असल में ना वो जिसको कहते हैं ना अपोजिट्स, डेंस एंड नोवेयर डेंस, दीज आर अपोजिट्स। जैसे दिन और रात, बिल्कुल यहाँ भी वैसा ही है। और इसे हम कंफर्म भी कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नोवेयर डेंस सेट इज dense, but complement of a dense need not be nowhere dense। उसकी भी एग्जांपल ऊपर ही है, क्योंकि हमें पता है कि Q is dense, Q complement is also dense, so complement of dense need not be nowhere dense। लेकिन अगर आपके पास अगर nowhere dense सेट है, तो अगर आप इसका complement लेते हैं, चलिए इसको हम देख लेते हैं कैसे। let xt be a metric space and A contained in X be nowhere dense, then अगर ये nowhere dense है, so by definition interior of A closure it has to be phi। ठीक है ना? This is definition of nowhere denseness। अब अगर आप ये करेंगे, if you take its complement down A complement closure अगर आप लेंगे, इनफैक्ट हम ये आप क्या करिए,
इसके लिए ना ये हम इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम पहले एक चीज यहाँ नोट कर लेते हैं। पहले सबसे पहले सपोज यू आर इन अ मेट्रिक स्पेस, इफ XD is a metric space and A be a subset of X, ठीक है, then अगर आप इसे देखेंगे A कॉम्प्लीमेंट, ध्यान से देखिएगा, क्लोजर होल कॉम्प्लीमेंट। मैं चाहता हूं आप इसको विजुअलाइज करें, तब जाके आपको समझ आएगा कि ये क्या होना चाहिए। लेट्स ड्रॉ अ पिक्चर फॉर दिस। सपोज दिस इज X, सपोज A को मैं हाथ से ही ड्रॉ कर लेता हूँ, बिकॉज आई डोंट नो वेदर A इज क्लोजर और नॉट, whether A is closed or open। तो इसमें कुछ बाउंड्री पॉइंट्स अंदर हो सकता है और कुछ बाहर हो सकता है, तो इसीलिए मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये वो बाउंड्री पॉइंट्स है जो A से बाहर होंगे और ये वो बाउंड्री पॉइंट्स है ये जो A के अंदर ही होंगे। सपोज दिस इज माय A, क्योंकि मुझे नहीं पता ये A क्या होगा यहाँ, बस A इज अ सबसेट, सो दिस इज A। अब ये जो आप यहाँ कर रहे हैं ना, इसको आप विजुअलाइज करें फॉर दिस A। सबसे पहले क्या करना है आपको, यू हैव टू टेक कॉम्प्लीमेंट। तो जब आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे इट विल बी दिस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, उस कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर, सो दैट मीन्स आपको फिर उस कॉम्प्लीमेंट में जो उस कॉम्प्लीमेंट के बाउंड्री पॉइंट्स है वो अटैच करने हैं। तो ऐसे ही करने से आगे आपके बाउंड्री पॉइंट्स, तो अब ये है ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर, क्योंकि बाउंड्री भी आ गई अब। और फिर उसके बाद आपको फिर से कॉम्प्लीमेंट लेना है। आप मुझे बता सकते हैं अब क्या आ रहा है यहाँ पर? A. नहीं, ए कहाँ, A closer. Not getting. बाउंड्री तो फिर से देखिए, फिर से देखिए, क्या ए के बाउंड्री पॉइंट्स आएंगे इसमें? No, No. sir. नहीं आएंगे। तो अब क्या आएगा, कौन से पॉइंट्स आएंगे ए के? Interior point. इंटीरियर पॉइंट्स। सो दिस इज एक्चुअली इंटीरियर। ये आप ना यू कैन, ये तो मैंने आपको बस इसकी फीलिंग दी यहाँ पर कि दैट इट शुड बी इंटीरियर ऑफ ए, लेकिन आप इसको ना प्रॉपर रिग्रेसिव प्रूव भी कर सकते हैं। इनफैक्ट इसके लिए 3 लाइंस का प्रूफ है, 3 से ज्यादा नहीं है। आप 3 लाइंस में इसको ये कर सकते हैं कि दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ये मैं आपके लिए एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये आसान है, तो ये आप यू शुड बी एबल टू डू दिस। ठीक, ये देख लीजिएगा। अब देखिए हम इसकी मदद से यूजिंग दिस, इसे हम यूज करेंगे एज अ फॉर्मूला, और हम इसे अब कंप्यूट करेंगे किसे, यहाँ जो हमारा ये है ना ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर। अब इसे देखिए और मुझे आप बता सकते हैं यहां से आप ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर को कैसे लिख सकते हैं? इफ यू टेक कॉम्प्लीमेंट्स ऑन बोथ साइड्स, इसमें आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर, क्योंकि जब आप यहां से कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट इज अ सेट, मतलब ये असल में एक दूसरे को ना, A complement. इट विल बी व्हाट, इट विल बी इंटीरियर ऑफ ए Complement. होल कॉम्प्लीमेंट, यही होगा ना। ठीक, अब एक और चीज, वी नो दैट ए इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर, सही है। सो देयरफॉर इंटीरियर ऑफ ए will be contained in interior of a closure, ठीक। so interior A is contained in interior A closure, so therefore interior of A
whole complement will what? It will देखिए ये सबसेट है, ये सुपर सेट है। अब अगर आप कॉम्प्लीमेंट्स की बात करते हैं वहां क्या होगा? उल्टा। उल्टा हो जाता है। सो दिस विल कंटेन इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर कॉम्प्लीमेंट। तो यहां मैं अब ये इस्तेमाल कर सकता हूं, यहां पर मतलब ये जो चीज हमने यहां हासिल करी ना, इसे हम वहां यूज करेंगे। सो दिस विल कंटेन व्हाट? इट विल कंटेन इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर होल कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर? वो ऊपर आपको पता है, बिकॉज ए इज nowhere dense, so interior of a closure is phi, right? So this is actually phi complement. And what is phi complement? It is x. ठीक। so that means आप क्या देख रहे हैं यहां से? आप देख रहे हैं कि x is contained in this, that is x is contained in a complement closure, and a complement closure is already contained in x because x is the universal set in this case। ठीक। thus they are equal। a complement का जो क्लोजर है वो x के बराबर आएगा, and therefore a complement is dense। a complement is dense। तो यहां से क्या सीखते हैं आप? complement of a dense set is complement of a nowhere dense set is a dense set, but complement of a dense need not be nowhere dense, क्योंकि उसकी एग्जांपल है q and q complement, वो दोनों dense है। इसे आप लिखिए एज ए रिमार्क। complement of a nowhere dense set is a dense set। तो अगर आपके पास एक नोवेयर डेंस है सेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा इट विल बी डेंस। बट कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेंस नीड नॉट बी नोवेयर डेंस, वो डेंस भी हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ नोवेयर डेंस इज ऑलवेज डेंस। कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेंस में आप कुछ नहीं कह सकते, वो डेंस भी हो सकता है, उसमें बेसिकली ज्यादा कुछ हमें विदाउट एडिशनल इंफॉर्मेशन हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन हाँ यहाँ हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ नोवेयर डेंस इज अ डेंस सेट। अब इसके बाद एक और डेफिनेशन आप लिखिए, फर्स्ट कैटेगरी सेट्स। अब मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर फर्स्ट कैटेगरी सेट्स। लेट xt be a metric space and a be a subset of x, then this a is said to be a first category set if and only if and only if this a can be written as a countable union you can write this a as a countable union of nowhere dense sets। अगर ऐसा है then if it can be written as a countable union of nowhere dense sets then it's a first category set। for example अगर आप इसमें है in R with usual metric, अगर आप चलिए पहले n को देख लेते हैं। बेसिकली आप ये चीज z के लिए भी कर सकते हैं।
अगर आप n को देखेंगे, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, यूनियन n runs from 1 to infinity singleton n, ठीक। Now singleton sets being finite sets are nowhere dense, जैसा कि मैंने पहले ही आपको दिखाया था। So this is countable union of nowhere dense sets, so therefore this is a first category set। ठीक है। इसी तरह से since q is countable, तो इसकी आप enumeration, you can enumerate elements of q, and if you suppose that if q equal to this r1 r2 so on be an enumeration of q, then इस q को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, you can write this as union n runs from 1 to infinity singleton r sub n, सही है। And चूंकि singleton sets are nowhere dense, this is countable union of nowhere dense sets then, and so therefore it is first category। ठीक है। यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हमें यहाँ सीखने को मिल रही है वो ये है कि फर्स्ट कैटेगरी जो है ना, this concept of first category, it has nothing to do with the denseness or nowhere denseness। देखिए n is nowhere dense, ये भी फर्स्ट कैटेगरी है, q is dense और ये भी फर्स्ट कैटेगरी है। सो फर्स्ट कैटेगरी का होना it doesn't mean यहाँ से आप कोई चीज डिसाइड नहीं कर सकते फर्स्ट कैटेगरी होने से। नोवेयर डेंस भी फर्स्ट कैटेगरी हो सकता है और डेंस सेट भी फर्स्ट कैटेगरी हो सकता है। ठीक है। एक और डेफिनेशन आप लिखिए इसके बाद, सेकंड कैटेगरी सेट्स। A subset A, मुझे पहले एक फ्रेमवर्क क्रिएट करनी चाहिए थी, प्रॉपर्ली लिखेंगे इसको। Let xt be a metric space and A be a subset of X, then this A is said to be a second category set if and only if and only if A is not of first category। If it is not of first category, then we say it is of second category। Those sets which are not of first category are said to be of second category। As much what are second category sets? These are those sets which are not of first category। एक और डेफिनेशन आप लिखिए, चूंकि हमारे टॉपिक का जो टाइटल था उसमें भी आपने देखा था बेयर स्पेस। अब हम देखेंगे व्हाट आर बेयर स्पेसेस। आज बस हम डेफिनेशन ही देख पाए, हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, इंशाल्लाह कल बात हम करेंगे इसके लिए। बेयर स्पेसेस, let xt be a metric space then this xd is said to be a Baire space। We say it's a Baire space
if and only if it to be a Baire space, if and only if every, this is the requirement for a space to be a Baire space, every non-empty open set in XD is of second category. Space is said to be a Baire space if and only if every non-empty open set in XD is what? Is of second category. Is of second category means is not of first category. So that means Baire spaces are actually those spaces wherein you don't find any non-empty open first category sets. There are no non-empty open first category sets in Baire spaces, because every non-empty open set in a Baire space is of second category, and second category means is not of first category. ठीक है? So these are Baire spaces. अब इस यहाँ बेसिकली हम ये चीज से क्यों कर रहे हैं? हमारा बेसिकली जो मेन पर्पस है, इट इज टू प्रूव अ थियरम which is called the Baire's category theorem. Baire's category theorem says that every complete space is a Baire space. That means what? In a complete space, you won't find any what? You won't find any non-empty open first category sets. ठीक है? ये मैं आपको दिखाऊंगा. Every complete space is a Baire space. In particular, since R with usual metric is also what? This is also a complete space. So this is also a Baire space. So यहाँ भी आपको फर्स्ट कैटेगरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स नहीं मिलेंगे. मतलब यहाँ जो भी नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स होंगे दे विल बी ऑल व्हाट? ऑफ सेकंड कैटेगरी. एंड इन पर्टिकुलर चूंकि R भी खुद R जो है ना, R itself, this itself is what? It is नॉन एम्प्टी एंड ओपन. सो ये भी क्या होगा? ऑफ सेकंड कैटेगरी. आपकी क्लास कितने बजे है? इसके बाद हो रही है क्लास आपकी? Yes, sir. चलिए फिर ठीक है, बाकी अब कल देख लेते हैं ये. लेकिन ये चीजें देख लीजिएगा जो आज हमने सीखा, क्योंकि ये नई चीज है आपके लिए, तो देख लीजिएगा. अब मतलब ये मतलब दिस इज द फर्स्ट टाइम आप ये चीजें देख रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट्स देनी है. ठीक है? कोई क्वेश्चन है इसके, इन चीजों के रिलेटेड? आप देख लीजिएगा, अगर उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन होगा मुझे बताइएगा. ठीक, चलिए फिर कल मिलते हैं. कोशिश करिएगा अगर लेट भी क्लास अगर हो पॉसिबल हुआ ना तो मुझे बताइएगा, मैं क्लास लूंगा आपकी. Okay, sir. चलिए ठीक है, खुदा हाफिज.